welcome students. Now in this video we are discussing the practical 2. Already in the last 2 videos we had discussed everything about practical 2. But in those videos we had discussed about how the ETL process can be created by using SSIS. That how to create this ETL process by using Visual Studio and creating the entire data flow. But the same practical we are expecting that we will be completing by using the Power BI desktop also. So this video is entirely along with the ETL process of Power BI desktop. Now ETL already discussed in the last videos, that is extract, transform and load. So in this video we are expecting that we will be extracting the data of Northwind by using the OData feed. And we will be taking 2 tables, one is orders and second is called as product. And we will try to implement few transformation on that data. The few transformation which are expected is removing the columns which are not required, changing the data types of few columns, then trying to link some few tables along with the current tables, calculating or adding some kind of new custom columns along with the calculation, renaming the column, as well as combining the product and sales. So various activities we are trying to do it on the data which is extracted by us. So let's start completing this transformation of and a process of ETL along with the Power BI desktop. So here I am starting with my Power BI desktop and trying to link with our data from the Northwind SVC. So पहले तो सही सब लोग को मालूम है कि ये first video भी हुआ था. We are able to go for extracting the data from multiple backends or multiple data sources. So how to get the data is quite easy. You can get the data by using Excel or you can get it from the OData feed. I'm interested in doing it with the OData feed. You can get the links also of this OData feed. मेरा first video में मैंने link आपको दिया हुआ है जहां से आप लोग retrieve कर सकते हो OData feed को. So I'm interested in using our Northwind SVC service and putting this service over here under the URL. And when given a click on open. So मेरे दो students भी यहाँ पे, they will also help us to complete this particular practical. So I will be asking them, go offline पढ़ते मेरे साथ में, I will be asking them the queries and let's see how they are performing the thing. The first thing is what I require to select the tables out of it. कौन सा table select करना है? Products. तो यहाँ पे हम लोग लिया कौन सा रहेगा? Product table लिया और एक table लिया कौन सा? Orders. Now, do we require to go for giving the click on load or do we require to select transform data? अगर लोड कर देगा तो ओन्ड वे से वो स्ट्रक्चर करके ट्रांसफॉर्म कर देगा. बट हम लोगों को अलग अलग टेक्निक से ट्रांसफॉर्मेशन देखना है तो वी विल बी सिलेक्टिंग ओवर हियर द ऑप्शन कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्म डेटा. ट्रांसफॉर्म डेटा क्लिक करोगे तो ओपन करेगा अपना पावर क्वेरी और पावर क्वेरी में आप लोगों को इंप्लीमेंट करने का देगा ट्रांसफॉर्मेशन. यहाँ पे 2 टेबल आप लोगों को दिख रहे हैं, प्रोडक्ट्स एंड ऑर्डर. तो माई रिक्वायरमेंट इज व्हाट? रिमूव द अदर कॉलम्स. और मुझे कॉलम्स रखना है प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी पर यूनिट एंड यूनिट इन स्टॉक. तो नमिता मुझे बता, मैंने टेबल पहले कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए? प्रोडक्ट्स टेबल मैंने सिलेक्ट करना चाहिए और मुझे बाकी सभी कॉलम निकालना है. तो हाउ कैन आई रिमूव द कॉलम? राइट क्लिक एंड रिमूव कॉलम. तो कौन से चाहिए? प्रोडक्ट आईडी चाहिए था, प्रोडक्ट नेम चाहिए था, सप्लायर आईडी नहीं चाहिए मुझे, कैटेगरी आईडी भी मुझे नहीं चाहिए. राइट क्लिक कर दूंगा और क्या सेलेक्ट करूंगा? रिमूव कॉलम्स. क्वांटिटी पर यूनिट चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए. यूनिट प्राइस चाहिए, देख लो एक बार. यूनिट इन स्टॉक से चाहिए तो यूनिट प्राइस नहीं चाहिए तो आई विल जस्ट गिव राइट क्लिक एंड सेलेक्ट द ऑप्शन कॉल्ड एज रिमूव. फर्दर एनी अदर कॉलम विच यू आर नॉट इंटरेस्टेड, यूनिट ऑन ऑर्डर्स ये भी नहीं चाहिए ना हम लोग. एनी अदर थिंग विच यू नीड, ये अलग वाला टेबल से उसको रख दो, वैसे उसको हाथ लगा जरूरत नहीं. डिसकंटिन्यू होना चाहिए क्या आप लोगों को? नहीं. तो आई जस्ट गिव राइट क्लिक एंड सेलेक्टेड द ऑप्शन कॉल्ड एज रिमूव कॉलम. सो दीज आर द कॉलम्स व्हिच आर एक्सपेक्टेड टू बी केप्ट. सो वी हैड केप्ट ऑल दीज कॉलम. तो पहला टास्क तो अच्छे से कंप्लीट हो गया. नाउ नेक्स्ट टास्क, प्रणाली कैन यू हेल्प मी? द नेक्स्ट टास्क व्हिच इज विद मी इज चेंजिंग द डेटा टाइप ऑफ यूनिट इन स्टॉक कॉलम्स. तो कैसे करेंगे? मुझे होल नंबर में चाहिए तो यूनिट इन स्टॉक कॉलम को होल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे?
क्लिक करेंगे और क्या सेलेक्ट करेंगे? अच्छा, होम टैब में ही हूं मैं फिलहाल। डेटा टाइप ये क्या है? डेसिमल नंबर है। इस जगह पे हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे? यहाँ पे होल नंबर सेलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेटा टाइप उसका चेंज हो गया। तो ट्रांसफॉर्मेशन का और एक टेक्निक अपना कंप्लीट हो गया। Now next one, Namita, now I am interested in taking the help from you. Expand the order details table. In order table, select the order details column and choose all columns of order detail table. तो मुझे बता, मैं तो फिलहाल हूँ प्रोडक्ट्स टेबल में, तो मैं उसी में रहूं कि ऑर्डर टेबल्स में चला जाऊं? ऑर्डर टेबल्स में चला जाऊं। इसमें से उस कॉलम को निकाल दूं, अगर चाहिए तो निकाल दे सकते हैं, नहीं चाहिए तो रखो। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा? आप बता सकते हैं मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या है? ऑर्डर डिटेल्स, ये मेरे ख्याल से लास्ट में आएगा आपके पास। ये कस्टमर है, एम्प्लॉइज है, ऑर्डर डिटेल्स आया। अभी यहां पे क्या करूं? कहां पे क्लिक करूं? कॉलम पे। क्या कॉलम के बाजू का सिंबल? ओके, सिंबल पे क्लिक किया। फिर ये क्या देगा? आपको ऑर्डर डिटेल्स टेप का सभी कॉलम्स देगा। अभी यहां पे क्या क्लिक करूं? जो जो कॉलम चाहिए वो ले लिए और लास्ट में क्या कर दिया? ओके, चलो, तो ये एक्सपांशन अपना हो गया ऑर्डर डिटेल्स का। देखो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या कंप्लीट किया अभी तक? रिमूव किया जो जो कॉलम नहीं चाहिए वो, डेटा टाइप को हम लोगों ने चेंज किया, एक्सपांड किया हम लोगों ने ऑर्डर डिटेल्स टेबल को। यू नो दैट वी नीड टू एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, and then analysis will be happening. The next thing is what? Calculate the line total for each order details as row and creating the line total as a custom column. तो प्रणाली, you help me out में अभी क्या करना चाहिए? Add column नाम का टैब है, वहां पे चले जाऊं। चलो, इसमें क्या करना है? कस्टम कॉलम। कहा ये कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल कस्टम कॉलम, ठीक है। कस्टम कॉलम में आ गया। अभी क्या करूं? लाइन टोटल नाम दे दूं। चलो, लाइन टोटल नाम दे दिया। और इसके अंदर क्या करना है? ये तो अवेलेबल कॉलम्स है, इसमें से कौन सा लो? ऑर्डर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय समेशन। क्या करना? क्या मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। चलो, ये हो गया। नो सिंटैक्स एरर हैज बीन फाउंड, लाइन टोटल कॉलम इज बीन एडेड। लाइन टोटल कॉलम लास्ट में आ गया हम लोग, राइट। एक कस्टम कॉलम मेरे पास आ गया। तो मैं और एक टास्क कंप्लीट किया ट्रांसफॉर्मेशन में। कौन सा वाला? कैलकुलेटिंग द लाइन टोटल फॉर ईच ऑर्डर डिटेल्स रो। नेक्स्ट क्या है? रीनेम एंड रीऑर्डर्ड कॉलम्स इन द क्वेरी। रीनेम करना है मुझे, तो भाई रीनेम करना है और रीऑर्डर करना है। तो प्रणाली आप ही बता मुझे, मैं क्या रीनेम करूं और क्या रीऑर्डर करूं? कैसे करेंगे? राइट क्लिक कर दिया, क्या सेलेक्ट करूं? यहाँ पे रीनेम ऑप्शन कहा, मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ, यहाँ पे आया रीनेम में। यहाँ पे क्या टाइप करूं मैं? अभी कुछ नाम दूं? क्या नाम दूं? आप बोलो। टोटल। ओके, स्टॉक वैल्यू, ठीक है। और ये स्टॉक वैल्यू को मुझे रीऑर्डर करना है, मतलब दूसरा जगह लेके जाना है उसको। जगह मुझे उसका कौन सा चाहिए मैंने पहले से डिसाइड कर रखा था, दैट इज अलोंग विथ शिप कंट्री के बाजू में चाहिए, आगे या फिर पीछे। तो भाई उसको कैसे रीऑर्डर करोगे आप बता पाओगे बेटा? यहाँ पे क्लिक करेंगे और ड्रैग करते जाएंगे, ड्रैग करते जाएंगे, ड्रैग करते जाएंगे, और कहां तक लेके जाना है उसको? शिप ऑर्डर तक लेके जाना है। आ नहीं रहे भाई, शिप कंट्री के आगे या शिप कंट्री के पीछे। तो ये क्या हो गया? अपना कॉलम भी क्या हो गया? रीऑर्डर करके हो गया। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं अपने पावर क्वेरी के अंदर। वी आर डूइंग इट इनसाइड व्हाटएवर पावर क्वेरी। सो मेजर टास्क हैव बीन कंप्लीटेड बाय अस। हम लोगों ने क्या कर दिया? हम लोगों ने पहले ओ डेटा से डेटा फिट से डेटा लिया, फिर रिमूव किया जो कॉलम नहीं चाहिए वो, चेंज किया डेटा टाइप्स को, ऑर्डर डिटेल्स कॉलम्स को भी एक्सपांड करके देखा, कैलकुलेट करके देखा, कस्टम कॉलम बना के रीनेम भी कर दिया और रीऑर्डर भी कर लिया क्वेरी के अंदर। अभी अगर चाहिए तो हम लोग यहाँ पे उसको क्या कर सकते हैं? होम में जाके अप्लाई एंड क्लोज कर सकते हैं। पर ये दोनों टेबल को मिला के भी आपको रिलेशनशिप बनाना है तो भी हम लोग रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो नेक्स्ट नमिता बता, अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करूं? चलो, पहले क्या करूंगा मैं? क्लोज एंड अप्लाई। ओके, तो यहाँ पे मैं क्लोज एंड अप्लाई किया तो मैं आ गया मेरा पावर डेस्कटॉप के यहाँ पे, और दोनों टेबल मेरे लोड हो रहे हैं। कौन से प्रोडक्ट भी लोड हो रहा है, एज वेल एज कौन सा ऑर्डर भी मेरा लोड हो रहा है, और दोनों का
एग्रीगेशन जो जो कॉलम पे पॉसिबल है वो सभी कॉलम का एग्रीगेशन इंप्लीमेंट होके आपके पास डेटा में आ जाएगा। तो चेक कर लो भाई सच में डेटा का एग्रीगेशन आया हुआ है कि नहीं। 77 रोज लोड हो गए, बाकी सभी रोज लोड हो गए और आप है यहाँ पे आपका डेटा के पास, और डेटा में आपके पास दोनों टेबल्स अवेलेबल है। वन इज कॉल्ड एज ऑर्डर्स एंड सेकंड इज कॉल्ड एज व्हाट ये प्रोडक्ट्स। करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है आप बता सकते हो नमिता? होम टैब में जाऊंगा, आगे क्या करूंगा? मैनेज रिलेशनशिप, मतलब मुझे भी करना क्या है, प्रोडक्ट टेबल और ऑर्डर टेबल का दोनों का रिलेशनशिप बनाना है। तो मैं यहां पे जाऊंगा मैनेज रिलेशनशिप में, एंड नाउ देयर आर टू टेबल्स, वन इज कॉल्ड एज ऑर्डर, सेकंड इज कॉल्ड एज व्हाट ये प्रोडक्ट। और खुद ही बता रहे कि ऑर्डर डिटेल्स का प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट टेबल का प्रोडक्ट आईडी है, दोनों एक दूसरे से क्या हो सकता है, लिंक हो सकता है बिकॉज ऑफ ऑटो डिटेक्शन एंड हैपन। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इट नेक्स्ट, न्यू रिलेशनशिप बनाओ। क्या इसे रिलेशन को देख लो एक बार देख लूं तो एडिट क्लिक करो, एडिट क्लिक करोगे तो दिखा रहा है कि मैनी टू वन, ये रिलेशनशिप क्या है मेरा, प्रोडक्ट टेबल का प्रोडक्ट आईडी, ऑर्डर टेबल का प्रोडक्ट आईडी। ओके कर लिया। एंड देन फर्दर अगर आपको नया भी क्रिएट करना है तो आप न्यू क्लिक कर सकते हो, और न्यू क्लिक करके टेबल में प्राइमरी के फॉरेन की जैसा रिलेशनशिप आप क्रिएट कर सकते हो, और उसके बाद में आप क्या करोगे रे, अब क्लोज क्रिएट करोगे। व्हाट नेक्स्ट आई नीड टू डू इट नमिता नाउ, जोर से। एनालिटिकल क्या थर्ड, ये डेटा है। हाँ बोल ना, बोलेगे तो समझेगा ना नमिता। क्या करना है, क्लिक आगे। मॉडल, मॉडल कहाँ, मुझे तो दिख रहा है मॉडल कहाँ पे, लेफ्ट कॉर्नर। ये है आपका क्या रे अब, रिपोर्ट, और ये है आपका क्या है, मॉडल। तो आप यहाँ पे आगे मॉडल्स में, और मॉडल में दिख रहा है आपको ऑर्डर टेबल है, और साथ साथ में क्या रे अब आपका प्रोडक्ट टेबल एंड हाउ द रिलेशनशिप्स आर बीन क्रिएटेड। एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू डू इट? ये तो ठीक है, ये मेनी हो रहा है और ये वन हो रहा है, वन टू मेनी का है, पर अभी तो कुछ रिलेशनशिप मुझे लगता नहीं कि आप लोग को चेंज करने की जरूरत है। तो वहां पर डबल क्लिक करके हम लोग यहाँ पर रिलेशनशिप चेंज करवा सकते हैं। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अब इसको सेव करके रखेंगे, बिकॉज नाउ वी आर एबल टू गो फॉर हैंडलिंग डेटा। वी हैड कंप्लीट द ट्रांसफॉर्मेशन, वी हैड सीन हाउ द मॉडल्स आर बीन क्रिएटेड, and now we require to move with the visualizations of the data in our next practical, that is practical number 3, 4, 5 जो आगे आएंगे वो। ठीक है, तो क्लास जरा बराबर से ये सब चीज को ध्यान दो और अच्छे से प्रैक्टिस करना। प्लीज लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।